Hello viewers, today I am with you all regarding the words formation. You know very well that in the world of English we have 8 kinds of words in which noun, adjective, verb and adverb are very much important. It is also quite known to you that the meaning of verb, noun, adjective and adverb are remained quite same. Only there is a little bit difference among these words, and the difference is only about the name. The same word is verb or noun or adjective or adverb. Today we have much more words, and you have to change the verb into noun, adjective into noun, or you have to change the noun into adjective. And in this regard, we have more than 60 to 70 words. Naturally, when you multiply it, it will tell you that more than 120 or 30 words you have to learn today. So without wasting the time, let us start the session. 20 words are visible on your screen. You can tally your answer. If the answer is tallied, that's good for you, and try to use them at any cost. Noun is used as a subject or as an object. Verb is used to show the action of the subject. And adjective, you know very well that adjective words are used to magnify the beauty of noun or pronoun. Let us start the discussion now. I will try to explain the meaning in Hindi also, and the formation of the new word will be given to you also. Try to pick up the right spelling and its meaning inside in your brain, so that you may feel happiness to use these words in your writing and speaking both. The first question: change the following verbs into noun. 20 वर्ब आपके सामने मौजूद है, उसको नाउन में बदल देना है. जो अर्थ वर्ब का होता है वही अर्थ नाउन का भी होता है. अंतर उसके अस्तित्व में. एक वर्ब के नाम से जाना जाता और दूसरा नाउन के नाम से जाना जाएगा. अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा. Let us see and enjoy the session. The first word. This is survive. Survive means to exist. अस्तित्व में होना. जब इसे आप नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा सर्वाइवल. सर्वाइवल, अस्तित्व. सर्वाइव मीन्स अस्तित्व में होना. जैसे many persons were survived after the great earthquake. The survival of many persons was considerable after the earthquake. I have used these two words as a verb and as a noun. अगले शब्द को देखें. यूटिलाइज. यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना. यूटिलाइज उपयोग करना. जब इसको आप नाउन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन यानी उपयोग. जैसे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू मस्ट यूटिलाइज योर टाइम वॉट एवर यू हैव. अगर आप नाउन में प्रयोग करते हैं, द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज क्वाइट एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. अगले शब्द को देखें. वायोलेट. वायोलेट मीन्स तोड़ना, ब्रेक. नियम को तोड़ना, रूल्स को तोड़ना.
जब इसको नाउन करेंगे आप तो वायोलेट का नाउन फॉर्म हो जाएगा वायोलेशन। वायोलेशन। द क्रिमिनल violated the law, therefore he was sent to jail. Violation of social custom is not tolerated by the people. I have used as a verb, as a noun both, and you are understanding the uses of these two words as a verb and as a noun. अगले शब्द को देखें, tolerate. टॉलरेट मीन्स बर्दाश्त करना, सहना। जब इसको नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा टॉलरेशन। टॉलरेशन यानी बर्दाश्त, सहन। यूनिफाई, यूनिफाई का अर्थ होता है एकीकृत करना, दो को एक में मिला देना, एकीकृत करना। जब इसे नाउन करेंगे तो ये हो जाएगा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन। यूनिफाई वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म यूनिफाइड, यूनिफाइड थर्ड फॉर्म होगा, और जब इसका नाउन करेंगे तो वह हो जाएगा यूनिफिकेशन। आप सबको यह कोशिश करनी चाहिए कि जबरदस्ती इन शब्दों को हम अपने बोलने में और लिखने में प्रयोग करें। यूनिफाई वर्ब के रूप में प्रयोग करें और यूनिफिकेशन नाउन के रूप में प्रयोग करें। जैसे द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी वॉज डिफिकल्ट। आई वॉन्ट टू यूनिफाई टू कंट्रीज। आई होप यू अंडरस्टैंड माई यूजेस। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाना। ट्रांसपोर्ट आमतौर पर वस्तु को ढोने का काम हम किसी गाड़ी के माध्यम से करते हैं, तो वैसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का अर्थ देता है वर्ब के रूप में। इसका सेकेंड फॉर्म ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड हो जाता, और जब आप नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। सक्सीड, सक्सीड आपका वर्ब है, सेकेंड फॉर्म सक्सीडेड, सक्सीडेड, और जब इसका नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा सक्सेस। सक्सेस नाउन, सक्सीड वर्ब। सक्सीड मीन्स सफल होना और सक्सेस सफल या सफलता। अगले वर्ड को देखें, रिंग। बड़ा सुंदर सा शब्द है रिंग। जैसे रिंग का अर्थ होता है निचोड़ना। आप अपने कपड़े को जो भींगा हुआ रहता है उसे आप गारने का काम करते हैं। रिंग योर क्लोथ्स बिफोर स्प्रेडिंग ऑन द हैंगर, यानी कपड़े को हैंगर में डालने से पहले निचोड़ लें। रिंग का सेकंड फॉर्म हो जाता है रंग, WRUNG, और थर्ड फॉर्म होता है रंग, WRUNG। जब इसका नाउन करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा रेंच। रेंच नाउन है, रिंग वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म रंग, थर्ड फॉर्म रंग। अगले शब्द को देखें, सेपरेट। सेपरेट मीन्स होता है अलग करना, जुदा करना। वर्ब है ये, सेकंड फॉर्म सेपरेटेड, थर्ड फॉर्म सेपरेटेड। जब इसको नाउन बनाएंगे आप तो ये हो जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन, सेपरेट अलग रहना, अलग करना। सेपरेशन बिल्कुल अलगाव। अगले शब्द को देखें, रिट्रीव। रिट्रीव का बड़ा सुंदर सा अर्थ होता है और कंप्यूटर की दुनिया में खूब इस्तेमाल किया जाता है। रिट्रीव पुनः प्राप्त कर लेना। फर्ज कीजिए कि कंप्यूटर में कोई फाइल
गुम हो गया है तो उसको रिट्रीव करते हैं, फाइल को रिट्रीव करते हैं, यानी पुनः प्राप्त करते हैं। तो जब रिट्रीव का आप नाउन फॉर्म करेंगे तो यह हो जाएगा रिट्रीवल। रिट्रीवल। स्ले, स्ले का अर्थ होता है हत्या करना, जान से मार देना, कत्ल करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है स्ल्यू, SLEW, और थर्ड फॉर्म होता है स्लेन, SLAIN। स्ले, स्ल्यू, स्लेन। जब इसका नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा स्लाउटर। स्लाउटर यानी स्लाउटर वैसी जगह जहां पर जानवरों को काटा जाता है या हत्या की जाती है, इसलिए कहा जाता है स्लाउटर हाउस, जहां पर जानवरों का कत्ल किया जाता है। अगले शब्द को देखें, एस्टिमुलेट। एस्टिमुलेट उत्तेजित करना, किसी को उकसाना, किसी को प्रेरित करना। एस्टिमुलेट, जैसे माई फ्रेंड एस्टिमुलेटेड मी टू अपीयर इन द IAS एग्जाम। एक्साइटमेंट देना, जब इसको आप नाउन करेंगे तो ये हो जाएगा एस्टिमुलेंट। एस्टिमुलेंट, जैसे tea is a stimulant, because whenever we enjoy a cup of tea we feel refreshed, therefore tea is a stimulant। अगले शब्द को देखें, रिटेन। रिटेन का अर्थ होता है, वर्ब है ये, इसका सेकेंड फॉर्म रिटेन्ड, थर्ड फॉर्म रिटेन्ड। इसका अर्थ होता है धारण करना, अपनी मेमोरी में रखना। जब इसका नाउन करेंगे आप तो ये हो जाएगा रिटेंशन। रिटेंशन। अगले शब्द को देखें, सोलमेनाइज। सोलमेनाइज, आमतौर पर सोलमेनाइज का अर्थ होता है किसी धार्मिक अनुसंधान को पूरा करना, लेकिन इस शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है वेडिंग सेरेमनी को लेकर। वेडिंग सेरेमनी भी एक प्रकार का धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य होता है। तो किसी रीति रिवाज को, किसी धार्मिक रीति रिवाज को मनाने के सेंस में सोलमेनाइज का प्रयोग किया जाता है। इसका सेकंड फॉर्म सोलमेनाइज्ड, सोलमेनाइज्ड, लेकिन जिसको जब नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा सोलमेनाइजेशन। सोलमनाइजेशन। स्पेलिंग पर गौर करेंगे, जहां पर जेड का प्रयोग किया गया है वहां पर आप एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE भी होता है और SE भी होता है। आप दोनों में से जिसका भी प्रयोग करेंगे वो अपने आप में शुद्धता को बरकरार रखेगा। सेल। सेल का अर्थ होता है बेचना, वर्ब है ये। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है सोल्ड और थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, SOLD। लेकिन जब इसका नाउन करेंगे तो ये हो जाएगा सेल, SALE। इन सारे शब्दों को मस्तिष्क में रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ यदि आप स्पेलिंग पर भी ध्यान देते हैं तो आपका सीखना बहुत तेज गति से होगा। सेल वर्ब है, लेकिन दूसरा सेल जिसकी स्पेलिंग SALE है वह आपका नाउन है। उसका भी अर्थ होता है बेचना ही, बिक्री होता है उसका अर्थ। अगले शब्द को देखें, सेव। सेव मीन्स बचाना। इसका सेकेंड फॉर्म सेव्ड, थर्ड फॉर्म सेव्ड। लेकिन जब इसको नाउन करेंगे आप तो ये हो जाएगा सेफ्टी। सेफ्टी। सेव का अगर आप सेफ करते हैं तो सेफ हो जाएगा एडजेक्टिव। सेफ्टी आपका नाउन,
सेफ्टी यानी बचाव, सेव मीन्स बचाना। इन अर्थों को मस्तिष्क में रखकर सेंटेंस में यूज करने का प्रयास आपको करना चाहिए और आपको जबरदस्ती इन सारे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, तभी आपके अंदर गति तेज होगी, लिखने की भी और बोलने की भी। शब्दों को सीखें और सीखने के बाद उसे यूज करें। जितना बार आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, मेमोराइजेशन आपका डेवलप होगा और आपकी अंग्रेजी में दिन प्रतिदिन सुधार आता जाएगा। रोटेट, रोटेट का अर्थ होता है गोल चक्कर लगाना। जैसे द अर्थ रोटेट्स द सन। रोटेट का सेकंड फॉर्म हो जाता है रोटेटेड, थर्ड फॉर्म हो जाता है रोटेटेड, ईडी लग जाता है। जब इसको नाउन फॉर्म में आप करेंगे तो ये हो जाएगा रोटेशन। अर्थ वही होगा जो रोटेट का है। रोटेट मीन्स गोल गोल घूमना, तो रोटेशन मीन्स घूर्णन। अगले शब्द को देखें, रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना। इसका सेकेंड फॉर्म रिड्यूस्ड, थर्ड फॉर्म रिड्यूस्ड। जैसे ही हैज टेकन मेडिसिन टू रिड्यूस हिज हेडेक। सर दर्द को घटाने के लिए उसने दवा लिया। जब इसका नाउन फॉर्म करेंगे तो वह हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब छूट हो जाता है, जो कम करने का ही आशय देता है। You have purchased a lot of article when the reduction fair was going on. अगला सेंटेंस को देखें, प्रिजर्व। प्रिजर्व मीन्स अक्षुण्ण बनाए रखना। जैसी स्थिति है उसी स्थिति को बरकरार रखना, मेंटेन रखना। प्रिजर्व मीन्स, जब इसको आप नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन। और आज के वर्ब का 20वां शब्द सी। सी मीन्स देखना। इसका सेकंड फॉर्म सा, SAW, और इसका थर्ड फॉर्म सीन, SEEN। लेकिन जब इसका नाउन करेंगे तो सी का नाउन हो जाएगा साइट। सी मीन्स देखना, तो साइट मीन्स दृश्य। I saw the natural beauty in Darjeeling. The sight of Darjeeling mountainous area was very attractive. You have to apply these words as a verb or as a noun when you are speaking or writing. I hope out of 20 words your answer will be correct. If that is correct, it's a matter of happiness. And if that is not correct, there is no problem. Try to adjust inside in your brain so that in future you cannot commit during your speaking and writing. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं। यस, अगला क्वेश्चन कहता है चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू नाउन। यानी एडजेक्टिव आपके पास 20 शब्द दिए हुए हैं, उनको नाउन में बदल देना है। एडजेक्टिव हम लोग के पास है, उसे नाउन फॉर्म में बदल देना है। सुविधा होगी आपको पहचानने में कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव है और कौन सा शब्द नाउन है। अगर शब्दों को पहचानने की शक्ति आपने डेवलप कर ली तो फिर अंग्रेजी आपके पास बस में होगी। शब्दों को पहचानना सीखना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी की दुनिया में 8 ही प्रकार के शब्द हैं। सबसे पहले वर्ड को देखा जाए, कैपेबल। कैपेबल, कैपेबल मतलब क्षमतावान। कैपेबल का अर्थ हो जाता है योग्य, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिसके अंदर क्षमता है। जब इसको नाउन करेंगे
तो ये हो जाएगा कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का अर्थ भी क्षमता, लेकिन नाउन बन गया। कैपेबल आपका एडजेक्टिव है। माई फ्रेंड इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। द कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। I have used these two words as an adjective and as a noun also. You should also try as I am trying and making it clear before all of you. अगला शब्द को देखें, कंपल्सरी। कंपल्सरी, कंपल्सरी बाध्य। आपने क्वेश्चंस पेपर पे देखा होगा, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सारे क्वेश्चंस का उत्तर देना अनिवार्य है। कंपल्सरी अनिवार्य का अर्थ देता है, बाध्यता का अर्थ देता है, एडजेक्टिव है। जब इसे नाउन करेंगे आप तो ये हो जाएगा कंपल्सन। कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स बाध्यता, कंपल्सरी मीन्स अनिवार्यता, अनिवार्य होना। डीप, डीप का अर्थ होता है गहरा। जब इसको वर्ब बनाएंगे तो ये हो जाएगा डीपेन। डीपेन, डीपेन का सेकेंड फॉर्म डीपेंड, डीपेंड, ईडी लग जाता है डीपेन के साथ, लेकिन हमें बनाना है नाउन। तो डीप का नाउन हो जाएगा, डीप मीन्स गहरा, तो डीप का नाउन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेप्थ, गहराई। लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, लंबा। आई हैव सीन ए लॉन्ग स्नेक ऑन द रोड। यहां पर मैंने लॉन्ग शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया, लेकिन जब इसको नाउन करेंगे तो ये हो जाएगा लेंथ। लेंथ यानी लंबाई। द लेंथ ऑफ द स्नेक वॉज मोर देन 10 फीट्स। आप भी कोशिश करें कि हम एडजेक्टिव की तरह और नाउन की तरह वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग जितना आपसे हो सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करने की कोशिश करना जरूरी है। अब अगले शब्द को देखें, डेंस। डेंस का अर्थ होता है, एडजेक्टिव है, घना। घना, जैसे डेंस स्मोक, डेंस डार्कनेस। जब इसे नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी, घनापन। अगर आप कहते हैं रिजिड, रिजिड, रिजिड यानी कड़ा, कड़ा। जैसे ही वॉज रिजिड इन दिस मैटर, इस विषय पर वह बहुत कड़ा है। अब जब इसको नाउन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा रिजिडिटी। रिजिडिटी। गैलेंट, गैलेंट का अर्थ होता है ब्रेव, एडजेक्टिव है। गैलेंट, ब्रेव। जब इसको आप करेंगे नाउन फॉर्म में तो यह हो जाएगा गैलेंट्री। गैलेंट्री यानी ब्रेवरी, बहादुरी। गैलेंट मीन्स बहादुर। गैलेंट्री मीन्स बहादुरी। सेंटेंस में इसको यूज करने का कोशिश करें। ट्रू, ट्रू मीन्स सत्य। जब इसका नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ट्रुथ। वॉट एवर यू से दैट इज ट्रू। द ट्रुथ, आई बिलीव इन ट्रुथ, यहां पे नाउन की तरह इस्तेमाल किया। अगले शब्द को देखें, ओबीडियंट। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। आपको मैं जानकारी दे रखा हूं कि जिस शब्द का अंत टी से होता है एडजेक्टिव होता है, और उसी शब्द में यदि आप सीई जोड़ दें तो वह नाउन बन जाता है। तो ओबीडियंट आज्ञाकारी एडजेक्टिव है, जब इसे नाउन बनाएंगे तो ओबीडियंस। अगले शब्द को देखें, स्कार्स, एडजेक्टिव है। स्कार्स का मतलब होता है कम, थोड़ा, कम।
तो जब इसे नाउन करेंगे आप तो ये हो जाएगा स्कार्सिटी, स्कार्सिटी यानी कमी। द स्कार्सिटी ऑफ नॉलेज ऑलवेज बिकम ए बर्डन टू एंजॉय सक्सेस। अगले शब्द को देखें, इंफीरियर। इंफीरियर का अर्थ होता है तुच्छ, घटिया, बिल्कुल नीचे स्तर का। जब इसे नाउन करेंगे तो यह बन जाएगा इंफीरियरिटी, इंफीरियरिटी। इनोसेंट, यहां भी टी है, जब नाउन करेंगे तो सीई आएगा अंत में। इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। तो जब इसको नाउन बनाएंगे तो यह हो जाएगा इनोसेंस। अगले शब्द को देखें, जेनरस। जेनरस एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है उदारता, उदार, विचारों से उदार, व्यवहार से उदार। जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी जेनरस इन डीलिंग विथ द पीपल। जब इसका नाउन फॉर्म करेंगे तो उदारता हो जाएगा अर्थ उसका, और वह शब्द होगा जेनरसिटी। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन जब इसका नाउन करेंगे तो इसी के नाम पर एक मोटरसाइकिल भी है जिसको आप लोग स्प्लेंडर के नाम से जानते हैं, स्प्लेंडर। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अर्थ हो जाता है मजबूत, एडजेक्टिव है। जब इसे नाउन करेंगे तो यह हो जाएगा स्ट्रेंथ। अगले शब्द को देखें, वाइटल। वाइटल का अर्थ होता है जीवंत, कैपेसिटी टू इंड्योर एंड परफॉर्म फंक्शंस, कैपेसिटी टू इंड्योर एंड परफॉर्म फंक्शंस। जीवंत, जिसको आप नाम दे सकते हैं। तो जब वाइटल को करेंगे नाउन फॉर्म में तो यह हो जाएगा वाइटलिटी। जीलस, जीलस का अर्थ होता है उत्साही, यह आपका एडजेक्टिव है। जब इसे नाउन में बदलेंगे आप तो हो जाएगा उत्साह, और उसे कहेंगे जिल। स्पेशल, स्पेशल यानी विशिष्ट, विशेष, स्पेशल, विशेष या विशिष्ट। तो जब इसे नाउन फॉर्म में बदलेंगे आप तो यह शब्द हो जाएगा स्पेशलिटी। प्राउड, प्राउड का अर्थ होता है गर्व, गर्व महसूस करना, प्राउड एडजेक्टिव है। लेकिन जब आप कहते हैं एरोगेंट, तो एरोगेंट का अर्थ भी होता है गर्व ही, लेकिन वो बैड सेंस में है, घमंड कहते हैं उसको। एरोगेंट घमंड है, लेकिन प्राउड गर्व है। तो जब प्राउड का नाउन फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्राइड। प्राउड मीन्स भी गर्व, प्राइड मीन्स भी गर्व। अंतर किस बात का? अंतर एक आपका एडजेक्टिव है, दूसरा आपका नाउन है। अगले शब्द को देखें, मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स मरणशील। जैसे मैन इज मोर्टल एडजेक्टिव है, आदमी मरणशील होता है। जब इसका नाउन फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा मोर्टालिटी। मोर्टालिटी, मरणशीलता। आई होप all these 20 words will be clear before all of you, and whatever the discussion I am performing before you, you should try to adjust the meaning inside your brain and accordingly use them in your sentence. अगले चैप्टर को देखते हैं। इस बार का जो क्वेश्चन है, शब्दों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि पेज का एक एक हिस्सा को मैं यूज कर डालूं,
ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू एडजेक्टिव। अब आपके सामने नाउन दिया हुआ है, उसको बदल देना है एडजेक्टिव में। एडवेंचर, एडवेंचर का अर्थ होता है, इसे आप कह सकते हैं कि वो सारा काम जिसमें आनंद भी हो और जान जाने का जोखिम भी हो, वैसे कार्य जिसमें थ्रिल भी हो। थ्रिल मीन्स रोमांच, जिसमें थ्रिल भी हो और जोखिम भी हो। तो वैसे सारे कार्य जिसमें जान जाने का डर के साथ आनंद की मात्रा छिपी हुई है, दैट इज नोन एज एडवेंचर। जैसे टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन इज एन एडवेंचरस वर्क। क्योंकि एडजेक्टिव बनाना है तो एडवेंचर का एडजेक्टिव हो जाता है एडवेंचरस। एडवेंचर, एडवेंचरस मीनिंग क्वाइट क्लियर टू यू। दोनों का अर्थ एक ही है। मनी, मनी आपका नाउन है, इसका अर्थ होता है रुपया पैसा। जब इसको नाउन करेंगे तो मनी का नाउन हो जाता है, बड़ा सुंदर सा वर्ड है, मॉनेटरी। हैव यू मनी टू परचेज दिस पेन? यहां पे मैंने नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप कह सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट इज टू मच। आप मॉनेटरी को नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और मनी को नाउन की तरह। मनी का एडजेक्टिव हो जाएगा मॉनेटरी। आई हैव मॉनेटरी प्रॉब्लम, मेरे पास पैसों की समस्या है। अगले शब्द को देखें, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण, गहना। जब इसको आप एडजेक्टिव में बदलेंगे तो यह हो जाएगा ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल। द नॉलेज इज एन ऑर्नामेंट फॉर ए स्टूडेंट। If you have accumulated much more knowledge, that is a kind of ornamental for your personality. अगले शब्द को देखें, पैशन। पैशन का अर्थ हो जाता है आवेग, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज रिलेटेड विथ पैशन। जब इसको एडजेक्टिव करेंगे तो यह हो जाएगा पैशोनेट। पैशोनेट। ग्लोरी। ग्लोरी का अर्थ होता है गौरव, गौरव। जब इसको एडजेक्टिव में बदलेंगे तो यह हो जाएगा ग्लोरियस, गौरवपूर्ण। अर्थ दोनों का एक ही है, अंतर किस बात का है कि एक नाउन है तो एक एडजेक्टिव है। और वैसे भी मैंने आपको सलाह दिया है कि किसी भी शब्द को बनाने के लिए सफिक्स और प्रीफिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थोड़ा सा जुबान को ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं बोलने का प्रयास करें, आपको अनेकों शब्द बनना शुरू हो जाएंगे। अगले शब्द को देखें, मिरेकल। मिरेकल मीन्स अद्भुत घटना। अद्भुत यानी वैसी घटना नहीं घटी हो, अनोखा, मिरेकल। तो जब इसको आप एडजेक्टिव करेंगे तो यह हो जाएगा मिरेकुलस। हर्ब। हर्ब का अर्थ होता है औषधि। जब इसे एडजेक्टिव करेंगे तो यह बन जाएगा हर्बल, औषधीय। देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स अवेलेबल इन द मार्केट from the herb. You have seen the herbal soap available in the shop in the market. आप नाउन की तरह इस्तेमाल करें, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ब्रेन को चलाना होगा। यदि आपका पकड़ टेंस पर है, मॉडल्स पर है, एक्टिव पैसिव पर है, तो इन शब्दों को यूज करना बिल्कुल आसान है।
और मैं अनेकों बार आपसे शेयर कर रखा हूं कि विदाउट टेंस यू कांट लर्न एक्टिव पैसिव, विदाउट टेंस एंड मॉडल्स यू कांट लर्न नरेशन। सीखना भी एक सिस्टमैटिक सिस्टम को रिक्वायर करता है। अगर आप सिस्टम से सीख रहे हैं तो सीखना आसान, और यदि आप सिस्टम को तोड़कर सीख रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल। कोई भी छात्र बिना टेंस का, बिना मॉडल्स का, जानकारी लिए बिना पैसिव नहीं कर सकता, नरेशन नहीं कर सकता। उसे ये एजुकेशनल वीडियो देखने में आनंद नहीं आएगा, वह बोर महसूस करेगा और अंग्रेजी से उसके मन में अंग्रेजी के प्रति चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए। इसलिए एक सिस्टम की आवश्यकता है। अगले शब्द को देखिए, मसल। मसल, मांसपेशियां। मसल जो बोलते हैं, हमारे शरीर में जो मांस हैं उसे मसल्स कहते हैं। जब इसको एडजेक्टिव करेंगे तो ये हो जाएगा मस्कुलर। मस्कुलर। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान को कहते हैं। यह एक विषय है, वह विज्ञान जिसमें मानवीय मन का अध्ययन किया जाता है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। जब इसको एडजेक्टिव में बदलेंगे आप तो यह हो जाएगा साइकोलॉजिकल। हाँ, एक बात का ध्यान देंगे, साइकोलॉजी में पी जो पहला अक्षर है वह साइलेंट है। साइकोलॉजी नाउन है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण, जब इसे आप एडजेक्टिव करेंगे तो यह हो जाएगा एग्जाम्पलरी। मेटल, मेटल को कहते हैं धातु। धातु, देयर आर सो मेनी मेटल्स अवेलेबल ऑन द अर्थ। जब इसे आप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे तो यह हो जाएगा मेटेलिक। मेटेलिक। मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, जो समय बीत रहा है उसमें क्षण, लेकिन इसको आप कर देंगे मोमेंटस। मोमेंटस, तो ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया मोमेंट का। बॉय, बॉय यानी लड़का, तो जब इसको आप एडजेक्टिव करेंगे लड़कपन तो ये हो जाएगा बॉयइस। बॉयइस। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो बचपना या बच्चे के जैसा आप करना है, गुड सेंस में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे चाइल्डिश। हिज चाइल्डिश बिहेवियर ऑलवेज अमेज्ड मी। यहां पर चाइल्डिश एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल। हैबिट, हैबिट का अर्थ होता है आदत, तो आदतन एडजेक्टिव करेंगे तो ये हो जाएगा हैबिचुअल। हैबिचुअल। अगले शब्द को देखें, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास। ध्यान दीजिएगा, सीई है स्पेलिंग में। अगर सीई है तो मैं बता चुका हूं कि यह नाउन फॉर्म है, लेकिन अगर यही एसई कर देंगे तो वह वर्ब हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। PRACTISE, प्रैक्टिस, अभ्यास करना। PRACTICE यानी अभ्यास, नाउन है ये। और जब इसको एडजेक्टिव में बदलेंगे तो यह हो जाएगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। अगले शब्द को देखें, जोक। जोक को आप कह सकते हैं समथिंग सेड और डन टू कॉज अम्यूजमेंट। ऐसा कुछ कहा जाना जिससे कि आपका मनोरंजन हो, जोक कहलाता है। जब इसको नाउन एडजेक्टिव फॉर्म में लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा जॉकुलर। मशीन, मशीन, मशीन तो मशीन आप समझ रहे होंगे।
वो सारी चीजें मशीन हो जाती है जो किसी पार्ट पुर्जा को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है, एक शेप दिया जाता है। जब इस मशीन को आप एडजेक्टिव करेंगे तो यह बन जाता है बहुत सुंदर सा शब्द, मैकेनिकल। हीरो, हीरो का अर्थ वह नहीं है जो हिंदी मूवी में अभिनेता होते हैं। हीरो का अर्थ होता है वीर। हीरो मीन्स वीर, नाउन है। लेकिन जब आपको वीरता कहना है, वीरता, तो ये हो जाएगा हीरोइक, वीरता। मिस्ट्री, मिस्ट्री को कहते हैं रहस्य। रहस्य, रहस्य यानी वह चीज जिसको कि हम ना जानते हो, पहली बार जानने का मौका मिला हो, रहस्य। तो रहस्य को जब आप बनाएंगे, मिस्ट्री को जब आप एडजेक्टिव करेंगे तो यह हो जाएगा मिस्टीरियस। वर्चू, वर्चू का अर्थ होता है गुण, नाउन है। जब इसे आप एडजेक्टिव करेंगे यानी गुणों से भरा हुआ, तो हमें कहना पड़ेगा वर्चुअस, वर्चुअस। ऊड, ऊड का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी। जब इसे एडजेक्टिव करेंगे तो यह बन जाएगा वुडन। जैसे दिस इज ए वुडन टेबल, यहां पर मैंने एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया। आई हैव परचेज द वुड फ्रॉम द मार्केट, यहां पर मैंने नाउन की तरह इस्तेमाल किया। अगले शब्द को देखें, जेलेसी। जेलेसी, जेलसी कहते हैं ईर्ष्या को, जलन को। जब इसे नाउन करेंगे तो यह, एडजेक्टिव करेंगे तो यह हो जाएगा जीलस। जीलस, जीलस आपका एडजेक्टिव है, वही अर्थ देता है जो जेलसी अर्थ देता है। अंतर इस बात का है कि जेलसी आपका नाउन है और जीलस आपका एडजेक्टिव है। जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा है, नाउन चैप्टर में, एडजेक्टिव चैप्टर में, प्रोनाउन में, वर्ब में, एडवर्ब में, उसके अनुसार सोचें और सेंटेंस में इस्तेमाल करें। अगले शब्द को देखें, लग्जरी। लग्जरी का अर्थ होता है विलासिता, विलासिता। विलासिता से तात्पर्य मेरा है पैसे के बल पर सुख के साधन को खरीद लेना। तो लग्जरी विलासिता का अर्थ देता है, और जब इसे एडजेक्टिव करेंगे आप तो यह हो जाएगा लग्जरियस, विलासितापूर्ण, लग्जरियस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, इसको जब करेंगे तो प्रैक्टिकल। डिलीजेंस, डिलीजेंस आपका सीई से समाप्त हो रहा है, जाहिर सी बात है नाउन है, तो एडजेक्टिव बदलना है तो टी लगाना पड़ेगा। डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंस आपका नाउन है, जब इसको एडजेक्टिव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा डिलीजेंट। डिलीजेंस मेहनती, डिलीजेंट भी मेहनती, वही अर्थ देता है जो लेबोरियस। लेबोरियस और डिलीजेंट में कोई अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है, मेहनती, और दोनों एडजेक्टिव हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी खर्च, खर्च नाउन है। व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ दिस शर्ट, नाउन की तरह इस्तेमाल हो, लेकिन जब इसे आप एडजेक्टिव करेंगे तो यह हो जाएगा एक्सपेंसिव। द प्राइस ऑफ the price of this shirt is very expensive। और अंतिम वर्ड आज की क्लास का नंबर। नंबर का अर्थ होता है संख्या, जो मैथ्स में आप इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नंबर का अर्थ वचन भी होता है, यहां पर इसका तात्पर्य है संख्या। तो जब इसको एडजेक्टिव करेंगे तो यह हो जाएगा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, संख्या से संबंधित।
एडजेक्टिव फॉर्म है न्यूमेरिकल और नंबर आपका नाउन फॉर्म है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस पीरियड में जितने भी वर्ड्स आपके सामने आए हैं और उनको क्रमशः वर्ब से नाउन में, नाउन से एडजेक्टिव में जो भी आपने बदलाव किया है, अगर इन शब्दों को आप याद रखते हैं, याद रखने का तरीका रटना नहीं होता, याद करने का, अंग्रेजी के शब्दों को याद करने का आसान सा तरीका यह है कि हम उसे अधिक मात्रा में किसी के सामने बोल जाएं, या हम उसे अपने कॉपी पर अनेकों बार लिख डालें। आपके बोलने और लिखने से आपकी मेमोराइजेशन मजबूत हो जाएगी और इन शब्दों को जितना मात्रा में आप प्रयोग करेंगे आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब कुछ हमारे पास टिप्स हैं जो थोड़े से समय में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। याद करने के लिए मैंने एक रास्ता दिया है सफिक्स और प्रीफिक्स को। आप जानते हैं कि वर्ड्स फॉर्मेशन में सफिक्स और प्रीफिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर वर्ब में हम ER या OR या ION, AL, AGE, TION, SION, MENT, ANCE या URE जोड़ते हैं तो वह नाउन बन जाता है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर एडजेक्टिव में नेस जोड़ दें, ITY जोड़ दें, DOM जोड़ दें, CY जोड़ दें या TY जोड़ दें तो वह नाउन बन जाता है। नाउन में यदि AL, ENT, FUL, LESS, LY, ISH, Y, IC, SOME या लाइक जोड़ देते हैं तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। नाउन में IFY, EN, IZE, EN, IFY, IZE जोड़ देते हैं तो वह वर्ब बन जाता है। PE में EM जोड़ दें, EN जोड़ दें या फिर नाउन जोड़ दें या एडजेक्टिव जोड़ दें तो वह हमारा वर्ब हो जाता है। और किसी एडजेक्टिव में LY जोड़ देते हैं तो वह हमारा एडवर्ब बन जाता है। यह एक संक्षिप्त सा आपको मेमोराइज करने के लिए, आपको समझने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया ताकि आपका तेज गति से शब्दों को पहचानने की क्षमता, साथ ही साथ उसको यूज करने की क्षमता भी डेवलप कर जाए। आज की क्लास में बस इतना ही। यहीं पर आज का सेशन समाप्त करता हूं। सेइंग ऑल ऑफ यू ए लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।